students, today I am here to teach you the most important topics from the chapter light. See, light chapter अपने आप में बहुत बड़ा chapter है, but there are certain topics जिनमें से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So in today's class we will revise those topics and we'll also solve the PYQs. So let's begin the class with the first topic, that is image formation by concave mirror. We all know that there are 6 cases for the image formation by concave mirror. Talking about the first case, then here we have the object placed between pole and focus. And this is one of the most important case. Now why is it so? Because सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें concave mirror virtual and erect image बनाता है. Rest in all the cases concave mirror forms real and inverted image. क्लियर? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पोल एंड फोकस पे रखेंगे तो इमेज आपकी फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, और इसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर? ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द साइज ऑफ द इमेज देन यू कैन सी दैट इट इज एन एनलार्ज्ड इमेज. नेक्स्ट केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पीछे ले गए. दैट मीन्स नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. नाउ व्हेन द रेज ऑफ लाइट विल फॉलो द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन देन यू विल सी द इमेज गेट्स फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी. दैट मीन्स इमेज आपकी कैसी बनी है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है ना, तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. इट इज हाईली एनलार्ज्ड. So the nature of image is real and inverted. It is highly enlarged and position of image is at infinity. Next case, object is placed between focus and center of curvature. In this situation again, the nature of image will be real and inverted. It is formed beyond center of curvature and it is enlarged in size. कैसी है size में? बड़ी. Next, the object is placed at center of curvature. Again the important case, because in this situation जहां object रखा है image वहीं form हो जाएगी. That means object अगर center of curvature पे रखा है तो image आपकी center of curvature पे ही बनेगी. Image का size कैसा होगा? It will be of the same size and the nature of image is real and inverted. Clear? Talking about the next case, then object is placed beyond center of curvature. Object को center of curvature के पीछे रखा गया है. That means image कहाँ बनेगी? Between F and C. It will be real and enlarged but smaller in size. See, आपकी image कैसी बनी है? Smaller in size. Final case, object is at infinity. That means the rays of light will appear to come from the infinity and hence they will be parallel and close to the principal axis. Principal axis के parallel and close होंगी rays of light and after reflection they will meet at a point and that point is nothing but our focus. ये focus पे meet करेंगी. The image will be point size. It is real and inverted and the position of image is at focus. Clear? चलिए इस पूरे डायग्राम को हमने एक टेबल में सम अप कर दिया है. अब आप इस टेबल को देखो. Whenever the object is at infinity, image कहाँ फॉर्म हुई? आपकी फोकस पे. बट जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? इन्फिनिटी पे. एक दूसरे के उल्टे हो गए ये. सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी. But when the object is between C and F or F and C, the image gets formed beyond C. Again, एक दूसरे के उल्टे cases. Finally, when the object is at C, image is at C. Clear? Next, the exceptional case, when the object is between pole and focus, the image will be formed behind the mirror. सबको clear हुआ? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आप देखो कि ऑब्जेक्ट क्या आपका इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है. दैट इज इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आ रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता जा रहा है. क्लियर? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो रहा है आप देखो आपका इमेज का साइज क्या हो रहा है? इमेज का साइज आपका बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जितना आपके मिरर के पास होगा इमेज उतनी कैसी बनेगी? आपकी बड़ी बनेगी. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी हैव ओनली two cases. The first case, when the object is placed beyond pole
और यू कैन से बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पीछे रखा है तो इमेज आपकी कहां बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर, क्योंकि ये देखो मिरर की ये वाली साइड कैसी है? पॉलिश साइड। इमेज आपकी कहां बन गई है? पॉलिश साइड पे। दैट मेक्स द नेचर ऑफ इमेज एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज स्मॉलर इन साइज। Clear? Talking about the next case, the object is placed at infinity. The image will be formed at focus. Again, it will be virtual and erect and will be highly diminished. So, from these two cases, what we have concluded is कि convex mirror हमेशा virtual and erect images ही बनाते हैं and छोटी images बनाते हैं convex mirror. और ये रहा उसका tabular representation. Clear? चलिए, next we have the mirror formula. So what the mirror formula says? 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F, where V, U and F are image distance, object distance and focus. Clear? Talking about the magnification of mirror, then it is defined as ratio of height of image to the height of object. That means अगर हम image की size का ratio लें with the size of object, तो वो मुझे मैग्निफिकेशन बताता है। एंड ऑल्सो वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन विच सेज दैट मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू फॉर मिरर। सो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर ऑल्सो। क्लियर? नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। So here we have the question which was asked in 2025. That means previous year ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? If we want to obtain a virtual and magnified image of an object by using a concave mirror, आ गया वो exceptional case, the exceptional case with concave mirror where it forms the virtual and magnified image. What was the case? When the object is placed between pole and focus. So further ये क्या कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। Next, where should the object be placed? So what it is asking? It is asking about the position of object. तो इतना तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को मुझे पोल और फोकस के बीच में रखना है। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स जो मेरा U है ना वो लेस देन 18 सेंटीमीटर होगा क्योंकि मुझे उसे फोकस से आगे रखना है। क्लियर? फर्दर हमें मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड करना है ऑब्जेक्ट distance such that the magnification is given to us as +2. So magnification हमें दी हुई है +2. We know the formula for magnification minus V upon U. That means V equals to -2U. Now we'll simply apply the mirror formula 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. 1 upon V की जगह मैं लिखूंगी -1 upon 2U plus 1 upon U is equal to -1 upon 18. Now when you will solve this equation, you will get the value of U as -9 centimeter and yes, this value is less than 18 centimeter. So the correct answer to this question is 9 centimeter. Clear? Now let's move ahead and talk about the image formation by convex lens. So जैसे हमारे पास concave mirror में 6 cases थे ना, same हमारे पास convex lens में 6 cases हैं। So ये cases क्या कहते हैं? That when the object is placed at infinity, same image आपकी बनेगी focus f2 पे, but जब object focus पे रखा होगा तो image बनेगी आपकी infinity पे। Next, when the object is placed beyond 2f1, the image will be formed between f2 and 2f2. And when the object is placed between f1 and 2f1, then the image will be formed beyond 2f2. Again, the same case. मिरर में क्या था? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इमेज कहां बनेगी आपकी? ट्वाइस ऑफ f2. इट विल बी ऑफ सेम साइज, रियल एंड inverted. And now the exceptional case, when the object is placed between focus and optical center, the image will be formed on the same side of the lens. The nature of the image will be virtual and erect and it will be enlarged. Clear? चलिए, now let's look into the question. So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसमें से करेक्ट डायग्राम सिलेक्ट करना है सच दैट कि हमारी इमेज कैसी बने? मैग्निफाइड। हमारी इमेज कैसी बने? मैग्निफाइड। अब ये देखो ऑब्जेक्ट आपका रखा है
2f1 पे, तो इमेज कहां बनती है 2f2 पे, और ये होती है सेम साइज की, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट आपका है बियॉन्ड 2f1, इमेज कहां बनती है, याद करो इमेज कहां बनती है C। When the object is beyond 2f1, image is between f2 and 2f2 and it is diminished बनती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। Now the object is placed between f1 and 2f1, ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज कहां बनती है beyond 2f2 and it is enlarged। You can see in the table, object is placed between f1 and 2f1 beyond 2f2 image and it is enlarged. That makes option C as the correct option. So the correct explanation to this question is given over here and the correct answer is option C. Clear? चलिए next question. To get an image of magnification -1, हमें इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए -1। मैग्निफिकेशन होता क्या है आपका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो आपकी इमेज का साइज है वही आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 एंड द इमेज गेट्स फॉर्म्ड एट 2f2। दैट मीन्स हेयर आपके फोकल लेंथ का डबल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ 20 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। डबल होना चाहिए ना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 20 का डबल 40, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 40 सेंटीमीटर। सो यस, हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size? Again the same question। पिछले क्वेश्चन देखो आप, पिछला क्वेश्चन आपका 2025 में आया था, सेम कॉन्सेप्ट। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2024, कॉन्सेप्ट सेम है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। अगर मुझे सेम साइज का इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां होना चाहिए एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन भी इसका सी ही है। सो यस, हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ यू हैव सीन कि कैसे सिर्फ उस एक टेबल में से आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस हैं। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f1। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आपकी इमेज कहां बनेगी फोकस पे। क्लियर? इन द सेकंड केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहां है फोकस के पीछे। इन दिस सिचुएशन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड optical center. So this is the second case. In both the cases the nature of image is virtual and erect and it is diminished in size. Clear? So same thing is written on the table also. So this is the table. चलिए आगे बढ़े। Next we have the lens formula. So what is lens formula? 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. Magnification is height of image to the height of object, or you can say v upon u. These are the important formula. Now we have one more question जो आपसे 2023 में पूछा था। Now what does this question says? The power of a lens is +4 diopter. हमें पावर दी हुई है +4 diopter। अगर पावर पॉजिटिव है दैट मीन्स फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। सो यस, पहली लाइन पढ़ते ही हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर पावर इज 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन f, और अगर मीटर में है तो 1 अपॉन f। फिलहाल क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मैं देख सकती हूं कि मुझे कुछ फिजिकल यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, दैट्स वाई मैं यहां पे पहले से क्या लेके चल रही हूं, अपनी फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में। सो दैट मीन्स फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन p. So f equals to 100 upon 4. That means the value of focal length is 25 centimeter. Clear? Now it is saying an object is placed at a distance of 50 centimeter. U कितना है? -50 centimeter. And
State the nature and magnification of the image found by the lens and also draw a ray diagram to justify your answer. तो हमें नेचर बताना है और मैग्निफिकेशन बतानी है इमेज की जो कि ये लेंस फॉर्म करेगा. सो सिंपली यू कैन सी ओवर हियर कि आपकी फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका 50 सेंटीमीटर. ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या है, डबल ऑफ फोकल लेंथ. इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2f1 पे. अगेन द सेम केस, 2023 में भी वही सवाल पूछा है जो 25 और 24 में पूछा था. कॉन्सेप्ट सेम है. सी ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे रखा है. कैसे पता चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल है आपकी फोकल लेंथ का. इसका मतलब इमेज आपकी कहां फॉर्म हो रही होगी, 2f2 पे. अब उसने पूछा क्या, नेचर एंड मैग्निफिकेशन. मुझे पता है इस सिचुएशन में नेचर क्या होती है इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, -1. या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपका सेम ही रहने वाला है. इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो दिस गोज विद दिस एंड वी आर लेफ्ट विद -1 ओनली. सो यू हैव सीन दैट कैसे एक ही कॉन्सेप्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में पूछा गया है. क्लियर. सेम सोल्यूशन आपका यहां पे भी दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ द रे डायग्राम विल बी ड्रॉन. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. Now let's move ahead and talk about our new topic. So that new topic is refractive index. And generally हम इस refractive index को small n से denote करते हैं. सबसे पहले आपको मतलब समझना है absolute refractive index का. Absolute refractive index. So absolute refractive index समझने के लिए आपको एक assumption लेना है that first medium is air or vacuum. So whenever the first medium is air or vacuum, and let's say that small c is the speed of light in air or vacuum, and we have one more medium. हमारे पास एक और मीडियम है, let's say उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, v. So this c upon v, that is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the given medium, is known as the absolute refractive index. So absolute refractive index क्या है, लाइट की स्पीड एयर में to the लाइट की स्पीड किसी भी गिवन मीडियम में. This is the absolute refractive index. Clear? Now let's talk about the refractive index term. ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म की. तो अब मान लो हमारा फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम ना होके कोई भी दूसरा मीडियम है और सेकंड मीडियम भी कुछ और मीडियम है. ठीक है, मान लो फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, फर्स्ट मीडियम आपका ग्लास है और सेकंड मीडियम आपका वाटर है. सो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम to the speed of light in second medium. सेम चीज जो हमने यहां पे की है. And this can be also written as n2 upon n1. So this is the meaning of refractive index. It is the ratio of speed of light in one medium to the other medium. But when the first medium is fixed as air or vacuum, then we say that it is known as absolute refractive index. Clear हो गया सबको ये. चलिए अब सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. सो हियर इज द न्यूमेरिकल इज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023. आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये. अब आप देखो इसमें पूरा हमारा एक केस लिखा हुआ है. जस्ट रीड इट एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस. सो मैंने इन क्वेश्चंस को ना नेक्स्ट पेज पे इस तरह से स्प्लिट कर दिया है. आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाया, फॉर्मेट दिखाया है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था. मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट. So now looking at the first part, it says that we need to determine the speed of light in diamond. The refractive index of diamond with respect to vacuum is given to us as 2.42 and the speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Now we know the formula that n equals to c upon v. What we need to find is speed of light in diamond. So from here we can also say v equals to c upon n. Here v is the speed of light in diamond and n is the refractive index of diamond.
small c is given to us as 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Refractive index of diamond is 2.42. और अब जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे देन द आंसर विल बी 1.24 into 10 raised to the power 8 meter per second. So it means the speed of light in diamond is 1.24 into 10 raised to the power 8 meter per second. और यही है इस पार्ट का आंसर. Clear? चलिए, now let's talk about the second part. So second part says that refractive index of glass, water and carbon disulfide are 1.5, 1.33 and 1.62 respectively. तो हमें refractive index दिया हुआ है किस किस का? ये है ग्लास का, ये है वाटर का और ये है कार्बन डाइसल्फाइड का. फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इन मीडिया पे, वो भी सेम एंगल से Q पे. Now we need to write the increasing order of the angle of refraction. That means यहाँ पे है क्या? एक्चुअल में हमें 3 मीडिया दिए हुए हैं with their refractive indices और हमें ये फाइंड करना है कि अगर एक रे ऑफ लाइट इन मीडियम पे इंसिडेंट होगी सेम एंगल पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ऑर्डर क्या होगा. नाउ सी अगेन आई एम राइटिंग द सेम फॉर्मूला n इक्वल्स टू c अपॉन v. अब देखो ये C की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वट एवर इज द मीडियम, वेदर इट इज ग्लास, इट इज वाटर, वट एवर. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल रिमेन द सेम, दैट मीन्स दिस C विल रिमेन द सेम. सो हम यहां से क्या कह सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. दैट फर्दर मीन्स कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. क्लियर? अब आपको यह भी पता है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है वो मीडियम कैसा मीडियम होता है? वो मीडियम डेंसर मीडियम होता है. क्लियर? अब आप बताओ अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है? रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. दैट फर्दर मीन्स कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम इज लेस एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम. क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है डेंसर मीडियम में. सो इसका मतलब यह है कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होती है आपकी कम. क्लियर? अब मैं इस पूरे सिनेरियो को एक लाइन में बोलूं तो व्हाट आई कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये सिर्फ आपको अपने समझने के लिए कहना है. दैट मीन्स जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी. व्हाई इज इट सो? क्योंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होगी? कम. और लाइट की स्पीड कम होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी कम. क्लियर? सो अब हम यहां से देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी है? कार्बन डाइसल्फाइड की. दैट मीन्स इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा. ठीक? एंड सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वाटर की. दैट मीन्स इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा. सो आई कैन राइट हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for water will be more as compared to the angle of refraction in glass, which is again more than the angle of refraction in carbon disulfide. Why is it so? Because refractive index of carbon disulfide is more than the refractive index of glass, which is further more than the refractive index in water. So this is how we will answer the question. Clear? Now let's talk about the next part. सो नेक्स्ट पार्ट में हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास में एंड वाटर में और पूछा है विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर. इनमें से कौन डेंसर है? मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा लाइट की स्पीड उसमें कम होगी. लाइट की स्पीड उसमें कम है तो वो डेंसर मीडियम है. अब आप देख लो कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है. लाइट की स्पीड आपकी इसमें ज्यादा है और इसमें कम है. इसमें आपकी लाइट की स्पीड कम है. दैट मीन्स ये कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है. सो द आंसर टू ए पार्ट विल बी ग्लास. Glass will be your denser medium when compared to water. Why is it so? Because the speed of light in glass is less as compared to the speed of light in water. Clear? So ये part हो गया आपका complete. Next, a ray of light is incident normally. Ray of light आपकी कैसे incident हो रही है?
दिस इज हाउ द रे ऑफ लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट. ठीक है, एट द वाटर ग्लास सरफेस, ये वाटर है, मान लीजिए ये ग्लास है. एंड फर्दर ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास. रे के पाथ को क्या होगा जब वो ग्लास में एंटर करेंगी. सो मोस्टली बच्चों को क्या कंफ्यूजन होगा कि देखो ग्लास तो मेरा कैसा मीडियम है जी, डेंसर मीडियम. ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, वाटर इज अ rarer medium. This is what you will say, and whenever the ray of light moves from rarer medium to denser medium, it moves towards the normal. Clear? But see क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, the ray of light is incident normally. आपकी ray of light normally incident हुई है. That means angle of incidence आपका क्या है, zero. Angle of incidence आपका क्या है, zero, and that makes the angle of reflection also zero. That means here no refraction will take place. ray of light bend ही नहीं होगी. Clear हुआ सबको ये? So this is how you will answer this question. Don't get confused. Next we have this final part. So it says the absolute refractive indices of water and glass are 4/3 and 3/2. चलो, refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2. If the speed of light in glass, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी मुझे दी हुई है एज 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ आई नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर. वैक्यूम और वाटर में मुझे लाइट की स्पीड पता करनी है. तो क्या फॉर्मूला था, n = c/v. n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम. मुझे इसकी सारी जानकारी है, सो आई विल यूज दिस थिंग. सो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 3/2. This c is unknown to me and the v is given to me as 2 × 10⁸ meter per second. This 2 cancels out with this 2 and we are left with 3 × 10⁸ meter per second. So this is the speed of light in vacuum. And same concept will be followed for second part. Now for second part we will follow the same approach. Now again n is equal to c/v, but here this n is refractive index of water equals to speed of light in air or vacuum upon speed of light in water. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो आप इसे ऐसे लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. द वैल्यू ऑफ स्मॉल c इज 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन टू मी एज 4/3. और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 2.25 मीटर पर सेकेंड. सो यू हैव जस्ट सीन, फॉर्मूला आपका एक ही है, कॉन्सेप्ट आपका एक ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बट उससे रिलेटेड आपने एक तरह से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले. सो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम्स. नाउ आई होप यू ऑल गॉट अ गुड आइडिया दैट किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर light. So now it's your duty to solve more and more questions, to revise the learned things, and then you will perform very well at the final day. So I wish you a very good luck.